So, hello, dear students. Very good morning to all of you. And today I am going to start the new chapter, chapter number 1 of the class 8. The name is the crop production and the management. So, as we all know that the all organisms like man, animals, plant, they all need food for their growth and the survival. Now all the green plants can synthesize their food by the process of the photosynthesis. You know that what is the process photosynthesis? By using organism inorganic substance like carbon dioxide and gas and water and presents the sunlight of the form of energy. Okay. Now man and other animals cannot make their own food by the process of the photosynthesis. So it is totally dependent. So they are totally dependent on the food crops. Are you getting my points? I hope you have understand the animals and man. These are totally dependent for their surviving food, totally dependent on the plants. So let's see here for their growth and their development. So man obtain his food from plant as well as animal also. Okay, now let's see. In other words, man has to grow plant and rear animal to meet his requirement of the food. तो सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो फूड के लिए मैन जो ऑप्टेन होता है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है, प्लांट पे एंड एनिमल पे. नाउ लुक एट हियर, आल्सो एनिमल आल्सो डिपेंडेंट फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइविंग. They're totally dependent on the plant because they not make their own food by the process of the photosynthesis. Okay, so let's see here. The many types of plants are grown in a large scale. Okay, in the vast field because the food grains produced by them consume the large amount. Are you getting my point? So simply we can say that the कुछ ऐसे भी फूड टाइप्स होते हैं जो प्लांट होते हैं जो कि लार्ज स्केल में एक बहुत ही ज़्यादा फील्ड में क्या होते हैं, बहुत बड़े फील्ड में ग्रो कराए जाते हैं, प्रोड्यूस कराए जाते हैं फॉर द लार्ज अमाउंट. दीज आर कॉल्ड ग्रेन्स. ओके, सो सिंपली देर आर टू एग्जाम्पल, wheat and rice as best example of these two food grains. Okay, these are called the food grain. सिंपली इनको हम फूड ग्रेन बोलते हैं. इन एडिशन टू फूड ग्रेन, पल्सेज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आल्सो ग्रोन अ लार्ज स्केल बिकॉज वेट, हाँ, large scale because they are important part of our food, not only for the grain only. Okay, सिर्फ ग्रेन ही हमारे लिए important नहीं है, इसके अलावा हमारे लिए दाल यानी पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट for the animals and man. Okay, now look at here. The animals such as cow and buffalo are rarer to obtain milk, whereas goat, fish and hen are reared to get meat and eggs. ओके, तो सिंपली यहाँ पे एनिमल्स जैसे हमारे काऊ होते हैं, बफेले होते हैं, जो हमारे घरों में गाय और भैंस हैं, वो लोग क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं. ओके, नाउ इसी तरीके से हम जो फूड्स ऑब्टेन करते हैं लाइक गोट, फिश एंड हेन, दे आर गिविंग अस मीट एंड एग. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रैक्टिस टू ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ plants as well as animal also. Before we go further, should you know the meaning of the crops, and this is discussion below. Okay, now let's see what is crop. When the same kind of plant are grown in the field on a large scale to obtaining food like cereals are known as crops. तो सिंपली ऐसे प्लांट्स, सिंपली हम यह कह सकते हैं प्लांट को ही हम क्रॉप्स बोलते हैं. कैसे क्रॉप्स बोलेंगे सुन लो. यहाँ पे जब हम किसी भी प्लांट्स को लार्ज स्केल में एक ही टाइप के प्लांट्स को अगर ग्रो कराते हैं, ओके, सो ऐसे क्रॉप्स को हम ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा कहना है यहाँ पे, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत ही लार्ज स्केल में हम ऑब्टेन कराते हैं फॉर ग्रो कराते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड. ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप. ओके, सो सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं क्रॉप ऑफ वीट मीन्स होगा यहाँ पे दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड दैट आर वीट. ओके, सिंपली एक लार्ज स्केल एरिया में हम लोग देखते हैं कि एक ही टाइप के प्लांट्स लाइक वीट के प्लांट अगर होंगे तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप ऑफ वीट बोलेंगे. इसी तरीके से राइस के प्लांट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप ऑफ राइस बोलेंगे. इसी तरीके से भी फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, तो सिंपली इस तरीके से हम क्रॉप्स बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. Now, so simply a crop
of wheat means that all plant grown in the field are the wheat a crop is called फसल. सिंपली इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं. एंड क्रॉप आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय द फार्मर एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल क्रॉप आर गिवन बिलोज. तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि जो क्रॉप को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं, यू नो, फसल. ओके, तो फसल भी एक ही प्रकार का वर्ड है. जब सेम ही एक ही प्रकार के प्लांट्स यानी पौधे अगर बहुत ही लार्ज स्केल एरिया में हमारे ग्रो कराए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फसल या क्रॉप बोल सकते हैं. एंड सिंपली ये किसके द्वारा ग्रो कराए जाते हैं, किसान के द्वारा यानी फार्मर के द्वारा. नाउ द सम एग्जाम्पल ऑफ विच आर गिवन हियर फॉर द क्रॉप्स. नाउ लुक एट हियर, वी हैव टू डिफाइन द crops here, the cereal crops. Now look at here the cereal crops. Just wait. Now look at here the cereal crops. Now what do you mean by the cereal crops? Cereal crop also known as the grain crops. Simply cereal crops को हम क्या बोलते हैं, grain crops. Grain means होता है अनाज, यानी अनाज की फसल. तो सिंपली अनाज की फसल में क्या क्या पौधे आते हैं यहाँ पे देख लो. यहाँ पे कौन कौन से अनाज आते हैं, यहाँ पे ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं. वीट आता है, पैडी आता है, मेज आता है, मैलेट आता है, बार्ले आता है. सो सिंपली यहाँ पे इसको कहते हैं, वीट मीन्स गेहूँ, पैडी इट मीन्स राइस मीन्स चावल हो गया, मेज हो गया, मैलेट हो गया, बाजरा ज्वार जिसको मोटे अनाज बोलते हैं, बार्ले हो गया. ये सब हमारे सेरेल क्रॉप्स यानी फसल होते हैं जो अनाज देते हैं हमें. ओके, नाउ लुक एट हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज द पल्सेज क्रॉप्स. ओके, सो द पल्सेज में कौन कौन से दालें होती हैं जो कि हम लोग खेतों में उगाते हैं, ग्रो कराते हैं. तो यहाँ पे हो गया ग्राम्स, इट मीन्स चना जिसको बोलते हैं, पीज हो गया, बीन्स हो गया. ओके, तो इस टाइप के जो पल्सेज हैं हम लोग ग्रो कराते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में. ओके, नाउ द कुछ ऑयल सीड्स आल्सो ग्रो कराते हैं हम लोग इन द लार्ज स्केल एरियाज में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर ऑयल सीड्स. ओके, तो द ऑयल सीड, नाउ देयर इज द मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर. These are also grow in the large scale in the field, okay, by the farmer. So इसका भी हम यूज करते हैं, इसको भी हम क्रॉप बोल सकते हैं. नाउ द वेजिटेबल, सम वेजिटेबल आल्सो ग्रोन इन द लार्ज स्केल ऑफ द लार्ज स्केल इन द फील्ड बाय द फार्मर. सो लुक एट ये कुछ वेजिटेबल ऐसे भी हैं लाइक टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, पोटैटो आल्सो एंड द मेनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स विच आर ग्रोइंग द लार्ज स्केल. इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉप बोल सकते हैं. कुछ ऐसे बगीचे होते हैं फ्रूट्स के, आपने देखा होगा, जैसे बनाना होता है, ग्रेप्स होता है, गुआवा होता है, मैंगो होता है, ऑरेंज है, एप्पल है, इनके भी कुछ बगीचे मिलते हैं. इनको भी हम एक प्रकार से क्रॉप बोल सकते हैं. वाई क्रॉप हमने पहले ही बोल दिया है, जब एक ही टाइप के प्लांट बहुत ही लार्ज स्केल्स में हमारे यहाँ ग्रो कराए जाते हैं किसी एक फील्ड में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं. तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपके क्या हैं, क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ लुक एट हियर द क्रॉप इज आल्सो डिफाइंड इन द 2 वे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. क्रॉप कितने तरीके से डिफाइन करा गया है हमारे यहाँ सिस्टम्स में, हमारे यहाँ 2 वे में डिफाइन किया, 2 तरीके से डिफाइन करा गया. डिफरेंट क्रॉप ग्रो इन द डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर. सो सिंपली हर एक क्रॉप्स हमारा हर एक अलग अलग सीजन में मतलब क्या करता है, ग्रो करता है. तो सिंपली अ क्रॉप में ग्रो वेल इन द रेनी सीजन ड्यूरिंग समर, it may not grow well in the winter season. Similarly, the another crop may grow well in the winter season but not in rainy season, based on the season in which they will grow. Okay, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि all the crops categorize into the 2 main groups. सिंपली तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि रैनी सीजन में ग्रो करेंगे तो हॉट सीजन में ग्रो नहीं करेंगे. कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे विंटर सीजन में ग्रो करते हैं बट रैनी सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, इवन हॉट सीजन में ग्रो नहीं करते हैं. तो इस तरीके का प्लांट्स को हमें क्या करा गया, कैटेगराइज करा गया और सिंपली हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज द खरीफ क्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द रबी क्रॉप्स. ओके, नाउ द क्रॉप विच आर सोन इन द रैनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. तो सिंपली ऐसे क्रॉप्स जो कि रैनी सीजन में फाइंड आउट होते हैं यानी ग्रो करते हैं, वेल ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं. नाउ द खरीफ क्रॉप का रैनी सीजन में होने का सबसे सिंपल इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे कि वो प्लांट्स को नीड होगी हैवी वाटर्स की. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. हैवी वाटर यानी रैनी सीजन में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, वाटर मिलता है बाई नेचुरल. तो सिंपली यहाँ पे खरीफ क्रॉप में जितने भी फसल आते हैं ना उन सबको वाटर की नीड होगी. एंड यू नो रैनी सीजन कब होता है आपका, तो सिंपली रैनी सीजन जो स्टार्ट होता है हमारा वो होता है जून टू
सितंबर। तो सिंपली जून जुलाई में आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अगस्त तक वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वो सितंबर तक लास्टली चलता रहता है। तो इस केस में जितने भी फसल उगाते हैं यानी ग्रो कराते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स में कैटेगराइज होते हैं। और सबको क्या होती है, हैवी मात्रा में क्या होती है, आपको वाटर की नीड होती है। सो इस केस में क्या होता है यहाँ पे, दिस इज द सम एग्जाम्पल विच आर गोइंग इन द रेनी सीजन। ओके, नाउ द खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल हैं, लाइक हियर इज द पैडी, मेज, मैलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ओके, नाउ दीज आर दी पैडी। यू नो पैडी मीन्स क्या होता है, हमने पहले भी बोला कि पैडी मीन्स क्या होता है, राइस होता है। ओके, सो द पैडी गिव अस राइस। इन अदर वर्ड पैडी इज राइस क्रॉप्स। पैडी इज ग्रोन ओनली दी द रेनी सीजन बिकॉज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। हमने पहले ही बोला कि जिसमें खरीफ क्रॉप में जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने टाइप के प्लांट्स आते हैं, सभी के टाइप के सभी क्लॉट्स आपके क्या होते हैं, आपके लॉट ऑफ वाटर क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। तो पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन टू द विंटर सीजन बिकॉज वाटर अवेलेबल विंटर इज मच लेस एंड इन द हॉट सीजन। सिंपली ये कह सकते हैं उस केस में तो वो सूख ही जाएगा, उसको तो कभी पानी उसके, हम पहले ही बोल चुके हैं, राइस इट मीन्स पैडी क्रॉप्स को हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा यानी लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड इफ वीट इज सोन इन दी खरीफ क्रॉप्स इट विल नॉट ग्रो वेल दिस आज अ वीट प्लांट कैन नॉट टॉलरेंस टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन। और इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि वीट एक ऐसा क्रॉप्स है, हमें पता है वीट मीन्स गेहूँ होता है, और वीट एक ऐसा क्रॉप्स है जो सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं कि वो हमारे खरीफ क्रॉप्स में यानी खरीफ यानी आपके रेनी सीजन में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिकॉज इट नॉट सर्वाइव इन टू मच वाटर। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय द क्रॉप्स एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड दी व्हाट इज okay, so let's see in the next point. Okay, now look at here, let's see the next point. Now the next point is here the rabi crops. The crop grow in the winter season are called rabi crops. तो ऐसे क्रॉप्स जो हमारे विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ द रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या होता है, विंटर सीजन कब होता है हमारा, तो विंटर सीजन जनरली कब होता है हमारा, लुक एट हियर, द विंटर सीजन जनरली फाउंड इन दी अक्टूबर टू मार्च। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता रहता है। तो फरवरी से लेते हुए धीरे धीरे मार्च तक भी हल्का फुल्का विंटर सीजन रहता ही रहता है, लेकिन उसको इसमें कह सकते हैं। तो सिंपली रबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है। द स्विंग ऑफ रबी क्रॉप्स बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड अक्टूबर टू नवंबर एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय द मार्च और अप्रैल। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, peas, mustard, and linseed. Okay, so these are the example of the wheat rabi crops which are also grown in the month between the October to March, and these are harvested by the March, and the beginning of winter they are sowing. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ विंटर इसको क्या करते हैं, हम इसको सोविंग करते हैं यानी बोते हैं, और उस केस में हम क्या करते हैं, आफ्टर दी विंटर सीजन हम इस केस में कहते हैं जब विंटर सीजन जाता रहता है उस केस में हम उसको क्या करते हैं, कटाई का काम करते हैं यानी हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन द रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, वीट है, ग्राम यानी चना है, पीज है, मस्टर्ड में सरसों हो गया, लिंसीज है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम एंड कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी हमें पॉइंट्स को लर्न करना है, ऐसे पॉइंट्स को। द पीपल हु हैव नो परमानेंट होम एंड कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक इट हियर, लुक एट हियर देयर पॉइंट। ओके, कॉल्ड नोमैड यानी वंडरर्स, यानी ऐसे पीपल जो कि जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है और वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, लगातार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोमैड बोलते हैं या वंडरर बोलते हैं। इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं आदिवासी, या हम आदिवासी नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं जो जिनका एक ठिकाना नहीं होता है, नोमैड कहलाते हैं वो, ठीक है। तो टिल अबाउट 10,000 BC द पीपल आर नोमैडिक। सिंपली जितने भी पीपल्स हमारे यहाँ होते थे 10,000 BC से पहले, 10,000 बिफोर क्राइस्ट से पहले, यानी हम कह सकते हैं 10 और ये 2000 चल रहा है, तो इसमें कह सकते हैं 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल पहले जितने भी पीपल सर्वाइव करते थे हमारे वर्ल्ड में,
ठीक है, वो क्या होते थे, नोमैड होते थे, वो ब्रह्मचर्य करते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो मूविंग करते थे बिकॉज ऑफ देयर फूड। ओके, क्योंकि उनके लिए कोई साधन नहीं था फूड को ग्रो कराने के लिए, कोई उनके पास नियम नहीं थे, तो सिंपली उनको कुछ पता नहीं था, वो नोमैडिक थे। ओके, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, उनको जहाँ खाना मिलता था वहीं बसते थे, जब वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता था फिर वो दूसरी ओर चले जाते थे सर्वाइव करने के लिए। तो सिंपली वहाँ प्लेस टू प्लेस क्या होते थे, सर्च करते थे क्या, फूड एंड शेल्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यहाँ दिया हुआ है फूड एंड शेल्टर। दिस नोमैडिक पर्सन आर सर्चिंग फॉर देयर सर्वाइविंग फूड एंड शेल्टर। These nomadic are generally these nomadic pure are raw fruits and vegetable found in the nature, and they start hunting animal for food. Later they settle the sources of water such as river and cultivated lead to produce food, wheat, paddy and other food. This is now agriculture was born. तो सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर सो मैनी लॉन्ग ईयर्स यहाँ पे क्या नोमैडिक जो पीपल्स हैं वो घूमते घूमते कहाँ निकल गए आपके, सर्च करते वो क्या जीवन बिताते थे, वो सिंपली वो कच्चा फल खाते थे और उसके साथ साथ कच्चा फल खाने के साथ वेजिटेबल्स खाते थे जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता था उनको, और उसके बाद वो हंटिंग करते थे किसका, एनिमल का, फॉर देयर सर्वाइविंग फूड। ओके, फॉर देयर गेटिंग फूड। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, सर्वाइव करते थे। लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसे घूमते घूमते कहाँ निकल गए, नदी के किनारे या सोर्सेस ऑफ वाटर के पास। तो उस केस में उन्होंने क्या जाना, उन्होंने जाना कि हाउ टू प्रोड्यूस वीट, पैडी एंड अदर फूड क्रॉप्स। ओके, सो इस तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ बाय दी ह्यूमन बींग्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस तरीके में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। नाउ द ग्रोविंग ऑफ प्लांट एंड क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो सिंपली ये भी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना। द ग्रोविंग ऑफ प्लांट इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं खेती बाड़ी या कृषि बोलते हैं। तो सिंपली कृषि जो प्रोसेस हुई है वो क्यों हुआ है, तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट फॉर देयर ऑब्टेनिंग फूड, जो भी खाने पीने के लिए जो हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, ओके, इन द फील्ड में, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, यानी खेती बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो इन माई